اور یہاں پر آپ کو ہم خبر دیں گے، نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان انتقال کر گئے ہیں۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو، نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان انتقال کر گئے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان انتقال کر گئے ہیں۔ انہیں گزشتہ رات اسپتال منتقل کیا گیا تھا، لیکن اب خبر سامنے آئی ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان انتقال کر گئے ہیں۔ افسوس کے ساتھ آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان انتقال کر گئے ہیں۔ ظفر اقبال ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ظفر، بتائیے۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان انتقال کر گئے ہیں۔ اعظم خان گزشتہ روز پشاور کے نجی ہسپتال گئے تھے، کیونکہ ان کے معدے میں انفیکشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ علاج کے لیے نجی ہسپتال گئے تھے اور وہاں پر انہیں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ گزشتہ رات انہیں دل کا دورہ پڑا ہے، جس کی وجہ سے اعظم خان وہ انتقال کر گئے ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اعظم خان جو ہے وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان وہ انتقال کر گئے ہیں پشاور کے نجی ہاسپٹل میں، جہاں پر وہ اپنے معدے کے انفیکشن کی وجہ سے علاج کے لیے گئے تھے اور اس دوران انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ظفر اقبال۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان انتقال کر گئے ہیں۔ اعظم خان کو گزشتہ روز نجی اسپتال میں داخل کیا گیا تھا اور گزشتہ شب سے پشاور کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن آج صبح یہ خبر آئی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان انتقال کر گئے ہیں۔ گزشتہ روز انہیں نجی اسپتال میں داخل کیا گیا تھا اور گزشتہ شب سے وہ پشاور کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان انتقال کر گئے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان انتقال کر گئے ہیں۔ اعظم خان گزشتہ شب سے پشاور کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ظفر اقبال ہمارے نمائندے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ ظفر، بتائے گا ان کی نماز جنازہ کب تک ادا کی جائے گی؟ جی بالکل، ان کی نماز جنازہ کے بارے میں تاحال ٹائم جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا ہے، اور ان کے اہل خانہ فیملی جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کریں گے۔ ابھی چونکہ وہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ہاسپٹل سے ان کے آبائی گھر چارسدہ جو ہے وہ منتقل کی جا رہی ہے، جہاں پر ان کی نماز جنازہ چارسدہ میں ادا کی جائے گی، لیکن اس کے لیے تاحال فی الحال وقت کا تعین جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا، اور وہ فیملی جو ہے ان کی وہ مشاورت سے نماز جنازہ کا اعلان کریں گے، لیکن یہی امکان ہے کہ نماز جنازہ 4 بجے کے بعد ادا کی جائے گی۔ کہ ظفر اقبال اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان جو ہیں انہوں نے 21 جنوری 2023 کو حلف اٹھایا تھا اور آج وہ انتقال کر گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو معدے میں تکلیف تھی، انفیکشن ہوا تھا، جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا، لیکن اسی دوران انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ اعظم خان گزشتہ شب سے پشاور کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے اور اب انتقال کر گئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو معدے کی تکلیف تھی، جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا، لیکن ان کو دل کا دورہ پڑا، جس کے باعث وہ انتقال کر گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان انتقال کر گئے ہیں۔ بیورو چیف پشاور ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ضیاء، بتائیے۔ جی، ان کے جو ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے، ان کا یہ بتانا ہے کہ وہ گزشتہ رات ان کو اسپتال ایڈمٹ کیا گیا تھا، چونکہ وہ پہلے سے بھی ان کی طبیعت اکثر ناساز رہتی تھی اور وہ لیڈنگ ہاسپٹل میں عموماً جو ہے نا چیک اپ کے لیے جاتے تھے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ رات بھی وہ اسپتال میں ہی تھے، اور آج جب میں نے ان کے گھر کے ذرائع سے معلوم کیا ہے، یہ ورثک روڈ پشاور میں ان کا گھر بھی ہے اور یہاں پر اس وقت سیکورٹی کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں، تو ان کے گھر کے ذرائع بھی یہ چونکہ ان کا تعلق چارسدہ سے تھا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نماز جنازہ جو ہے تو وہ چارسدہ میں ہی ادا کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بتانا چلوں کہ وہ اس سے قبل بھی یہ خیبر پختونخوا میں تو پہلی مرتبہ نگراں وزیر اعلیٰ بنے، لیکن جب بھی اس سے قبل بھی جب نگران حکومت بنی تو اس سے قبل وہ نگران وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں وہ سابقہ چیف سیکرٹری تھے، جس کی وجہ سے ان کو متعدد بار جب بھی جو نگران حکومتوں کے حوالے سے کچھ حکومت کی تشکیل میں ان کا ایک نمایاں رول ہوتا تھا اور ان کی خدمات حاصل کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جب وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری تھے تو اس وقت بھی جو ہے تو ان کی جو ان کے حوالے سے جو ایک شناخت تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک ایماندار افسر ہیں اور صرف اپنے ہی پروفیشنل معاملات پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور نگران وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بھی
उन्होंने अपने इस खैबर पख्तूनख्वा काबीना में कोशिश की कि वो जो निगरान सेटअप है उसको जो है तो किसी तरीके से भी सियासी उसमें छाप ना आए। जब सियासी छाप आने लगी तो उन्होंने अपनी निगरान काबीना ही जो इलेक्शन कमीशन निशानदी की तो बरतरफ कर दी थी और नई निगरान काबीना बनी थी। और इस वक्त और उनका ताल्लुक भी किसी सियासी पार्टी से नहीं था। इसी वजह से लोग जो है तो ज़्यादातर जब भी उनकी जो रियासती इदारों की ज़रूरत होती थी तो उन पर ही एतमाद किया जाता था। इसके अलावा वो मुतादिद जो यूनिवर्सिटीज़ थी या रिफाई इदारे थे उनमें भी उनका एक अहम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी वो शामिल रहे हैं। जी अच्छा, ज़ियाउल-हक ये भी बताएगा इनके दौर हुकूमत में क्या क्या काम हुए, इनकी शख्सियत कैसी थी, इस हवाले से भी कुछ बताइएगा। शख्सियत तो बहुत मुतदिल किस्म की शख्सियत थी, बहुत ही धीमे लहजे में धीमा लहजा था उनका और कोशिश करते थे कि वो तनाज़ात से अपने आप को बचा के रखें। और यही वजह है कि जब उन पर एक तनाज़ा ये खड़ा हुआ कि इनकी काबीना में सियासी मुदाखलत हो रही है तो उन्होंने अपनी इलेक्शन कमीशन ने जब उसकी निशानदी की तो उन्होंने फौरन ही अपनी काबीना को ही मुअत्तल कर दिया था। बल्कि एक वक्त में तो ये भी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि जब उनको अपनी काबीना में सियासी प्रेशर नजर आ रहा था तो उन्होंने एक दो मरतबा इस बात का भी इज़हार किया था कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन फिर उनको जो है तो मजबूर किया गया कि वो अपना काम जारी रखें। तो लेकिन उनकी तबीयत अक्सर नासाज, अक्सर अहम जो मौके आते थे तो उनमें उनकी अदम मौजूदगी सामने आती थी और उसकी वजह यही बताई जाती थी कि उनकी तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से वो जो मीटिंग्स थी, बहुत अहम नोयत की मीटिंग होती थी, उनमें वो शिरकत नहीं कर सकते थे। और जबकि काबीना के इजलास में भी जो कि उनका अपना एक टेक्निकल एक इन्फ्लुएंस रहता था और टेक्निकल उनकी नो हाउ थी, एक्सपीरियंस था, तो काबीना के इजलास में अक्सर जो सेक्रेटरीज थे उनकी जो है तो वो अगर कोई सेक्रेटरी को गलत काम भी निशानदेही करता तो वो उसकी तस्दीक करते थे, क्योंकि वो खुद चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं। तो उस हवाले से इनके जो भाई हैं वो भी साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा थे अब्बास खान, उनकी भी वफात हो चुकी है। तो ये भी काफ़ी एजड थे और इनके चूँकि इनकी तबीयत भी नासाज रहती थी तो ये इस वजह से आज ये बताया गया है कि गुज़श्ता रात जब अस्पताल में उनको ले गए तो वहाँ पर जो है तो ये उनकी तबीयत संभल नहीं सकी और आज उनकी फौतगी हुई है। जी ज़ियाउल-हक, इनका जो करंट टेन्योर था वो 10 साढ़े 10 महीने का था। अब ये जो इनका करंट टेन्योर था इसमें कोई इस तरह का अहम फैसला या इस तरह की कोई ख़ास बात जो आपने ऑब्जर्व की? जी, उनकी कोशिश थी कि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा माली मुश्किलात का शिकार है तो उस हवाले से मुतअद्दिद बार उन्होंने वफाकी हुकूमत से रब्ता करने की कोशिश की कि ताकि खैबर पख्तूनख्वा को माली मुश्किलात से निकाला जा सके। और इस हवाले से उन्होंने मुतअद्दिद मीटिंग भी की, लेकिन वो बारआवार साबित न हो सकी, चूँकि मजमूई तौर पर मुल्क जो है तो एक माशी सूरत हाल और माशी मुश्किलात का शिकार है। तो जो फंडिंग जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा को अपनी बिजली के मुनाफे कीमत में 3 अरब रुपया माहाना मिलते थे तो वो उसमें रुकावट पैदा हो गई थी। इसके अलावा जो है उन्होंने यहाँ पे BRT जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में शुरू हुई थी बस सर्विस, उस हवाले से ये खदशा था कि ये चूँकि फंड की अदम मौजूदगी से बंद हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती कोशिशों से इसको फंड बंद होने से बचाया और उसके लिए फंड्स का बंदोबस्त किया। इस तरह सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से भी काफ़ी खदशात पैदा हो रहे थे कि सेहत इंसाफ कार्ड भी जो फंड्स की इसके फंड्स अवेलेबल नहीं है तो उस हवाले से भी जो है उन्होंने फंड्स का इंतजाम किया और सेहत इंसाफ कार्ड को भी जो है ना जारी रखने के लिए उन्होंने बंदोबस्त किया। गो कि कुछ अस्पतालों को डिलिस्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि जिन सरकारी अस्पतालों में सेहत इंसाफ कार्ड जारी है तो वहाँ पर ये इसकी रुकावट पैदा ना हो। तो इस हवाले से उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उनकी यही ज़्यादातर जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो उनका ये कहना था कि चूँकि वो निगरान वज़ीर आला है और उनका काम जो है तो इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाना है, तो और ये सिर्फ डे टू डे जो मामलात हैं उनको चला रहे हैं और उस हवाले से जो रुकावटें पैदा हो रही हैं तो वो उन रुकावटों को दूर करने की अपनी सतह पे कोशिश करते रहे हैं। क्योंकि किसी तक कुछ हद तक वो कामयाब हुए, लेकिन ज़्यादातर जो है क्योंकि फंड अवेलेबल मुल्क की माशी सूरत हाल के तनाज़ुर में जो फंड अवेलेबल नहीं हो सकते थे वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो इस हवाले से उनको ये मुश्किलात का सामना था। जी
अच्छा ज़ियाउल हक, जब कुछ वज़रा की जानिब से इस्तीफे दिए गए थे, किस तरह से इन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया था और उस बहरान से किस तरह से निकले थे? जी, जब निगरान जो वज़रा थे, जिस वक्त निगरान वज़रा पहली मरतबा जो काबीना बनी थी, तो उसमें ज़्यादातर जो PDM से ताल्लुक़ रखने वाली जमातों के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे, उनको निगरान काबीना में एडजस्ट किया गया था। तो वो अपनी जमातों के ताबे रहते हुए उनकी पॉलिसी को वो आगे चलाना चाहते थे, और कुछ हद तक तो वो डेवलपमेंट कामों में भी मसरूफ हो गए थे, जिस पर वज़ीर आला ने उस वक्त सख्त नोटिस लिया था और उनको तंबीह की थी कि चूंकि इनका ताल्लुक किसी भी किस्म की सियासी एक्टिविटी से नहीं हो सकता है और ना ही किसी सियासी एजेंडे को प्रमोट कर सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने इन पे सख्त सरजनिश भी की थी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पॉलिटिकल क्राइसिस के लिहाज से पैदा हो गया था कि गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के माबैन जो है तो एक राब्ते का जो सिलसिला था वो मुनक़ता हो गया था, क्योंकि जो वज़रा थे वो ज़्यादातर गवर्नर हाउस की तरफ फिर रुजू करने लगे थे, चूँकि इस वक्त जो है तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली, उनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है, तो वो ज़्यादातर चूँकि उनका एक सियासी झुकाव है, तो वज़रा भी उस तरफ रब्ता करना शुरू हो गए थे। तो एक दरार सी भी एक कह सकते हैं आपके उनके माबैन आ गई थी। तो उस वजह से फिर ये काबीना ख़त्म हुई। तो उस काबीना के ख़त्म होने के बाद अब जब नई काबीना बनी, तो वो जो गवर्नर हाउस और वज़ीर आला के माबैन जो फासले थे, उनमें ये देखने में आया है कि थोड़ा सा वो बड़े हैं और तनाव भी देखने में नज़र आया है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने वज़रा को जो है तो मना कर दिया था कि वो गवर्नर हाउस से किसी किस्म का रब्ता नहीं करेंगे अपनी सियासी मुशावरत के लिए भी या किसी अपनी ब्यूरोक्रेसी पे असर रसूख डालने के लिए भी। तो उनकी तरफ से ये काफ़ी सख्त अहकामात थे, जिसकी वजह से वज़रा जो है तो वो जो साबिक़ा वज़रा थे वो चूँकि एक सियासी अपनी उनकी सियासी जो है तो उनकी एक पहचान बनी हुई थी और एक सियासी झुकाव था, तो वो वज़रा उनको सबकोश कर दिया गया और नए वज़रा जो बने हैं तो उनके बारे में भी ये इत्तला है कि वो अब इस वक्त तक न्यूट्रल हैसियत में अपने सरकारियों सर अंजाम दे रहे थे। जी, अब चूंकि उनके फौजी हो चुकी है, तो अब नए जब वज़ीर आला बनेंगे तो उस नए वज़ीर आला की सूरत में नई काबीना भी तश्कील पाएगी। जी, अच्छा ज़ियाउल हक, इनका जसद खाकी पेशावर में ही है या फिर मुंतकिल कर दिया गया है? मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं? जी, अभी इनके चूँकि ये इनका आबाई जो इलाका है, गांव है, वो चरसदा है आबाई शहर, तो उस आबाई शहर में इनको मुंतकिल किया जाएगा और इनके तमाम फैमिलीज भी वहीं पर है। इसके अलावा जो है ये एक सियासी इनका एक ख़ानदान जो है तो काफ़ी फैला हुआ है, इनके मुख्तलिफ सियासी, समाजी, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के आला हुकाम भी जो है तो इनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद एक असर रसूख वाला, सियासी असर रसूख वाला भी और ब्यूरोक्रेटिक असर रसूख वाला भी ये ख़ानदान जाना जाता है। तो इस हवाले से इनके जो नमाज़ जनाजा है वो चरसदा में ही अदा की जाएगी। जी, ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा ज़ियाउल हक। तो आम खबर आपको दे रहे हैं और वो ये कि निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए हैं। आज़म खान गुज़िश्ता शब से पेशावर के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। गुज़िश्ता रोज़ उन्हें दाखिल किया गया था, लेकिन वो जाबर ना हो सके और अब खबर आई है कि उनका इंतकाल हो गया है। उनका चारसदा से ताल्लुक़ था, नमाज जनाज़ उनकी चारसदा में ही जो है वो अदा की जाएगी, तस्लीम भी वहीं की जाएगी। 21 जनवरी 2023 को निगरां वज़ीर आला का उन्होंने हल्फ उठाया था और वो इससे पहले निगरां वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं और चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। एक ईमानदार अफसर की शोहरत रखते थे और मोतदिल शख्सियत के वो हामिल थे। बिल्कुल, मोहम्मद आज़म खान और उनके इस दौर के दौरान एक मामला ये भी आया था कि जब उनके वज़रा में ये तासुर पाया जा रहा था कि वो किसी सियासी जमात में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा है, तो वहाँ पर उन्होंने अपने वज़रा को कहा था कि वो अपने इस्तीफ़े दें, जिसके बाद उनकी तमाम काबीना जो थी वो तहलील हो गई थी और दोबारा से नए निगरां जो वज़रा थे उनको इलेक्ट किया गया था
मोहम्मद आजम खान जो कि निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं, आज वो इंतकाल कर गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके मैदे में इन्फेक्शन थी और तकलीफ के बायस उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इससे पहले भी उनको इस मैदे की तकलीफ रहती थी और वो बीमार रहते थे, जिसके बायस काफ़ी मीटिंग्स में भी वो शिरकत नहीं कर पाते थे और हॉस्पिटल में जब वो एडमिट थे तो उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा पड़ने के बाद वो जाबर ना हो सके और रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए और अभी ये बताया जा रहा है 3:30-4 के दरमियान उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। ज़ियाउल हक ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया, ये बताइएगा कि इंतज़ामी उमूर कौन देखेगा अंटिल नए सेटअप नहीं आ जाता? हम ज़ियाउल हक से भी बात करेंगे, ब्यूरो चीफ पेशावर, और इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं कि निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए हैं और गुज़िश्ता रोज़ निजी अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया था पेशावर के, लेकिन वो जाँबर ना हो सके और अब वो इंतकाल कर गए हैं। 21 जनवरी 2023 को निगरां वज़ीर आला का उन्होंने हल्फ उठाया था और वो न सिर्फ निगरां वज़ीर दाखिला रहे, इससे पहले बल्कि वो चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। एक ईमानदार अफसर की शोहरत रखते थे और अब उनका इंतकाल हो गया है और चारसद्दा से उनका ताल्लुक था। उनकी नमाज जनाजा 3:30 बजे चारसद्दा में अदा की जाएगी, जिसके बाद वहीं उनकी तदफीन भी की जाएगी। उन्हें पेशावर के निजी अस्पताल दाखिल कराया गया था, लेकिन अब खबर आई है कि वो इंतकाल कर गए हैं। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर। ज़िया, ये बताइए कि जब तक नया सेटअप नहीं आ जाता तब तक इंतजामी उमूर कौन देखेगा? जी, अभी ये इस हवाले से एक आईनी जो है खला पैदा हो रही है, क्योंकि गवर्नर की अदम मौजूदगी की शक्ल में तो स्पीकर जो है तो वो गवर्नर के फराइज सर अंजाम देते हैं। तो अब ये दोबारा से ही यहाँ, क्योंकि ये इनकी नॉमिनेशन जो है वो उस वक्त के जो पीटीआई के वज़ीर आला थे महमूद खान और उस वक्त अपोजिशन लीडर जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से था, उनकी मशावरत से ही ये इनकी नामजदगी हुई थी। तो अब दोबारा ये इस हवाले से मुशावरत के बारे में बताया जा रहा है कि मुशावरत के ही जरिए इनको जो है तो अब इन नए वज़ीर आला की जो है तो नामजदगी होगी और उसका वक्त अगर किसी सीनियर वजीर को जो कि अभी होंगे तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि वो नए वज़ीर आला जो नए वज़ीर आला होंगे केयर टेकर, उनकी नामजदगी तक जो है तो वो अपने फराइज सर अंजाम दें। अच्छा ज़ियाउल हक, एक मतलब आप फिर से ये बताइएगा कि उनके अहले खाना की जानिब से कुछ बताया गया है कि क्या वो इससे पहले भी किसी बीमारी का शिकार थे जिसके बायस उनकी तबीयत नासाज हुई? जी, चूँकि उनकी एक काफ़ी एज थी, 70 साल से ज़ायद की उम्र थी उनकी, और उनके जो बीमारियों के हवाले से यह है कि वो मुतअद्दिद जो है तो उनकी अपनी बीमारियों का वो इलाज करवाते थे और दौरान वो जो वज़ारत आला है निगरां की, उस दौरान भी ये देखने में आया है कि वो मुख्तलिफ मौक़ों पे अस्पतालों में ज़ेर इलाज रहे हैं। तो अभी भी इनका जो वर्सक रोड पे घर है उस हवाले वहाँ पर तो अभी इस वक्त खामोशी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 3:30 बजे उनका जो नमाज जनाजा है वो पड़ांग चारसदा में अदा किया जाएगा और वहीं पर ही उनकी तदफीन होगी। इसीलिए और जो कि उनके अहले खाना है वो इस वक्त वहाँ पर अपने आबाई जो शहर है, गांव है, वहाँ चले गए हैं और वहाँ पर उनकी तदफीन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी ज़ियाउल हक, अगर वज़ीर आला ही नहीं रहते किसी सूबे के तो इसका मतलब कि काबीना भी ख़त्म हो जाती है। ऐसे में इंतज़ामी उमूर सीनियर वजीर कैसे देख सकता है, क्योंकि वो भी उस काबीना के साथ चला जाएगा, फिर कौन देखेगा चीजें? बिल्कुल जी, यही सूरत हाल अब ये पैदा हुई है, नई एक सूरत हाल पैदा हुई है और इस सूरत हाल को चूंकि अभी इस वक्त एक कानूनी मुश्किलात भी हैं और आईनी मुश्किलात भी हैं, तो अब ये देखना है कि अब इस वाले से यहाँ पर क्या फैसला होता है और कौन फैसला करता है। चूंकि ये तो एक कंसेंसस के साथ इनको निगरान वज़ीर आला मुंतखब किया गया था, निगरान वज़ीर आला के सब फराइज़ अंजाम दे रहे थे। तो अब ये देखना है कि अब यहाँ पे जब तक के नए निगरान वज़ीर आला नहीं बनते तो इन मामलात को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। जी
ٹھیک ہے، ایک آئینی بحران اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے اور ابھی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ اس صورتحال میں اس سیٹ اپ کو دوبارہ سے کس طرح سے بحال کیا جائے گا، جب ایک نگراں وزیر اعلیٰ جس کا آج انتقال ہوا ہے، اعظم خان انتقال کر گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کو معدے کی تکلیف تھی جس کے باعث انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا اور اسی علاج کے دوران ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ جابر نہ ہو سکے اور رضائے الہی سے انتقال کر گئے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اہل خانہ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور 4 سدہ میں ان کی تدفین کی جائے گی اور 3:30 بجے تقریباً نماز جنازہ بھی ادا کر دی جائے گی۔ اور بتاتے چلیں کہ اعظم خان خیبر پختونخوا کی حکومت کے خاتمے کے بعد سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تعینات ہوئے تھے اور آج وہ انتقال کر گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ کے اراکین اور اعظم خان کی جو فیملی کے ارکان ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسپتال پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں 3:30 بجے تقریباً ان کی نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی۔